Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In lecture first, I will discuss chapter number 1 and it is on accounting in action. After studying this chapter, you should be able to explain what accounting is, identify users and uses of accounting, understand why ethics is a fundamental business concept, explain the meaning of generally accepted accounting principles and the cost principle. Explain the meaning of the monetary unit assumption and the economic entity assumption. State the basic accounting equation and explain the meaning of assets, liabilities, and owner's equity. Analyze the effect of business transactions on the basic accounting equation. Understand what the four financial statements are and how they are prepared. First, I would like to share a feature story with you so that you can understand the importance of accounting in your life. The name of this story is Knowing the Numbers. Many students who take this course do not plan to be accountants. If you are in that group, you might be thinking, if I'm not going to be an accountant, why do I need to know accounting? And this is a common question. In response, consider the quote from Harold Jenny, the former chairman of IT&T. To be good at your business, you have to know the numbers. Quote. Success in any business comes back to the numbers. You will rely on them to make decisions, and managers will use them to evaluate your performance. That is true whether your job involves marketing, production, management, or information systems. In business, accounting and financial statements are the means for communicating the numbers. If you don't know how to read financial statements, you can't really know your business. Many companies spend significant resources teaching their employees basic accounting so that they can read financial statements and understand how their actions affect the company's financial results. One such company is Springfield Remanufacturing Corporation. When Jack Stack and 11 other managers purchased SRC for 10 cents a share, it was a failing division of International Harvester. Jack's 119 employees, however, were counting on him for their livelihood. He decided that for the company to survive, every employee needed to think like a business person and act like an owner. To accomplish this, all employees at SRC took basic accounting courses and participated in weekly reviews of the company's financial statements. SRC survived and eventually thrived. To this day, every employee, now numbering more than 1,000, undergoes this same training. Many other companies have adopted this approach, which is called open book management. Even in companies that do not practice open book management, employees generally assume that managers in all areas of the company are financially literate. So taking this course will go a long way to making you financially literate. So first we try to understand what is accounting. For this purpose, I am sharing two definitions. First definition is accounting is an information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users. So according to this definition, the first step in accounting is the identification of the economic events of an organization. यानी पहला स्टेप ये है कि हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि जो इवेंट अकर हुआ है क्या ये उस बिजनेस का इकोनॉमिक इवेंट है या नहीं। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब ये है कि उस इवेंट में फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व है या नहीं, यानी पैसा इन्वॉल्व है या नहीं। अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो हम उसको अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर पैसा इसमें इन्वॉल्व है और हमने आइडेंटिफाई किया है कि दिस इज एन इकोनॉमिक इवेंट, देन वी रिकॉर्ड दैट इकोनॉमिक इवेंट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि फुटबॉल सेल करती है और वो 1 मिलियन की उसने सेल की है फुटबॉल, तो इसमें फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व हैं, इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे करती हैं, जब वो सैलरीज पे करेंगी तो हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे।
इस तरह कंपनी जो है वो अपने यूटिलिटी बिल्स पे करती है। जब अपने यूटिलिटी बिल्स पे करेंगे तो वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा दूसरी पार्टी को, तो हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल एक एक बिजनेस है, वो किसी दूसरे बिजनेस के साथ एग्रीमेंट करता है तो फ्यूचर में जाके कहीं जो है वो प्लांट लगाएगा। तो ये फ्यूचर में जब प्लांट लगाएगा तो अभी इसका जो ये इवेंट हुआ है, इसमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्व नहीं है, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, तो हम इस इवेंट को अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है अकाउंट्स के अंदर कि अकाउंटेंट ने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इवेंट अकर हुआ है, ये जो ट्रांजैक्शन अकर हुई है, इसमें जो है वो फाइनेंशियल इन्वॉल्व है या नहीं। तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये इस बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं। अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो फिर हम उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या मेथड होगा, वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में उसको स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने ये समझना है कि जो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक इवेंट्स, हमने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये इस बिजनेस का इकोनॉमिक इवेंट है या नहीं। अगर है इकोनॉमिक इवेंट, फिर हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें, और अगर वो नहीं है तो फिर हम उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करें। थर्ड स्टेप इज कम्युनिकेशन, यानी आपने जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करना है टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। इंटरेस्टेड यूजर्स को कैसे कम्युनिकेट किया जाए, तो ये अकाउंटिंग जो है एक पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके थ्रू हम उस इंफॉर्मेशन को यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं इंटरेस्टेड यूजर्स। इंटरेस्टेड यूजर्स क्या है, जिनका इंटरेस्ट है उस बिजनेस में, जिनका स्टेक है उस बिजनेस में। फॉर एग्जांपल जैसे कि उस कंपनी की मैनेजमेंट है, उस कंपनी की ऑनरशिप है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं जो सेकंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है। So this definition is the extended form of the previous definition. It says that accounting is the art of identifying, recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the financial information about an organization to concerned people who need such information. इसमें और जो प्रीवियस डेफिनेशन है उसमें तीन चीज़ें कॉमन है। एक आइडेंटिफिकेशन है, दूसरा रिकॉर्डिंग है, और तीसरा कंसर्न पीपल, यानी कि आप आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, आप उसको रिकॉर्ड करते हैं अपने पास, और आप उसको जो है वो पास ऑन करते हैं टू दी इंटरेस्टेड पीपल, यानी कंसर्न पीपल का मतलब है इंटरेस्टेड पीपल या इंटरेस्टेड यूजर्स, जिसका इंटरेस्ट है उस बिजनेस के अंदर। इस डेफिनेशन को हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। Here you can see in this diagram that we have divided the accounting into 5 steps. First step is recording, then second step is classifying, and third step is summarizing. Fourth step is analyzing, and fifth step is interpreting the financial information. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने अकाउंटिंग जो है उसको 5 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। और फर्स्ट स्टेप में रिकॉर्डिंग है, फिर क्लासीफाइंग है, समराइजिंग है, एनालाइजिंग है और इंटरप्रेटिंग है। जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं ये रिकॉर्डिंग प्रोसेस का पार्ट है, और इस सब्जेक्ट में और इस सेमेस्टर में हमारा जो मेन फोकस होगा वो ये तीनों स्टेप्स होंगे, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइज करेंगे। और जो लास्ट 2 स्टेप्स हैं एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये आप सेकंड सेमेस्टर में जाके, नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें आप जाके इसको फर्दर स्टडी करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, यानी ये जो रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है ये एक ही ट्रांजैक्शन के बाद ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये चलता रहेगा। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। रिकॉर्डिंग से पहले हमने डेफिनेशन में देखा था आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनमें हम सिर्फ जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं करते।
इसलिए सबसे पहले हम इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है या जो इवेंट है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये इकोनॉमिक इवेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले जो अंडरस्टैंडिंग हमने इसमें डेवलप करनी है, वो हमने ये डेवलप करनी है कि जो भी इवेंट अकर हुआ है बिजनेस का, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, वो इकोनॉमिक इवेंट है, फिर हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और हमारा जो पहला स्टेप होगा उसे रिकॉर्डिंग कहेंगे। और रिकॉर्डिंग जो होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। लेकिन अभी क्योंकि आपका ये बेसिक कोर्स है और अभी हम इनिशियल स्टेजेस पे है, तो अभी मैं कोई मुश्किल वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि इसको आसान रखूंगा ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो रिकॉर्डिंग में जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, इसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बिजनेस की एग्जांपल ली थी कि एक बिजनेस है, वो फुटबॉल सेल्स करता है। अगर वो फुटबॉल सेल करता है तो उस फुटबॉल की जो सेल है, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, चाहे वो उसको क्रेडिट के ऊपर सेल करे, चाहे वो उसको कैश के ऊपर सेल करे। अगर वो उसको सेल करेगा तो हम उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन वो सेल जो है वो वन टाइम एक्टिविटी नहीं होगी बिजनेस की, क्योंकि उसका बिजनेस है, तो वो उसको बार बार सेल करेगा। तो ये एक जो है वो कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, तो हम उसको बार बार रिकॉर्ड करेंगे। तो जिस डेट को वो सेल करेगा, उस डेट को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने 1 सितंबर को 100,000 की सेल्स की, फिर 2 सितंबर को उसने 50,000 सेल की, 5 सितंबर को उसने 200,000 की सेल की, तो हम उसको अपने पास इन्हीं डेट्स के ऊपर रिकॉर्ड करते रहेंगे। इसी तरह बिजनेस के अंदर जो है वो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, वो बल्क में होती है, वो एक ट्रांजेक्शन नहीं होती। इसी तरह सेल्स की जैसे मैंने एग्जांपल दी, इसी तरह एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे करनी है तो वो उसको हर मंथ फॉर एग्जांपल मंथली पेमेंट करता है तो मंथली पे करता रहेगा। इसी तरह यूटिलिटी बिल्स हैं, जब वो पे करेगा, हम उसको अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह अगर रॉ मटेरियल परचेज करता है, हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड करेंगे। जब परचेज करेगा, हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर क्रेडिट परचेजेस की हैं तो अकाउंट्स पेबल्स जनरेट होते हैं उससे, जिनके पैसे हमने देने हैं, तो हम उसको अपने पास रिकॉर्ड करेंगे कि हमने इसके पैसे देने हैं। इसी तरह अगर आपने सेल्स की है क्रेडिट के ऊपर, तो अकाउंट्स रिसीवेबल्स जनरेट होते हैं, हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे हमने पैसे देने हैं। और जब जब वो ट्रांजैक्शन होगी, हम उसको उस डेट के ऊपर रिकॉर्ड करते रहेंगे। इसी तरह अगर लैंड परचेज की है, बिल्डिंग परचेज की है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, इसी तरह एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, कुछ सप्लाईज परचेज की, तो हम उसको अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो जो बिजनेस है उसकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, और हम उसको जैसे जैसे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, और उनको हम उसके डेट वाइज जो है उसको हम फिर अपने पास रिकॉर्ड करते रहते हैं। इससे हमारे पास एक जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है रिकॉर्डिंग के अंदर, उसमें हमारे पास बहुत सारा फाइनेंशियल डाटा जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। अच्छा, हमारा जो मेन पर्पस है अकाउंटिंग का, वो ये है कि हमने जो इंफॉर्मेशन है, यूजफुल इंफॉर्मेशन, उसको पास करना है टू दी इंटरेस्टेड यूजर्स। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि मैनेजमेंट जो है एक उसका कंसर्न पीपल है या इंटरेस्टेड यूजर है, कि मैनेजमेंट को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी वो इंफॉर्मेशन जो उसको कोई फायदा दे सके और जिसको सामने रख के वो कोई डिसीजन कर सके। अगर हम रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को देखें, तो हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स की बहुत सारी ट्रांजेक्शन और डिफरेंट डेट्स के ऊपर होंगे। इसी तरह जो परचेजेस होंगी या हमारे पास जो क्रेडिटर्स होंगे, या हमारे पास जो रिसीवेबल्स होंगे, तो उनकी डिफरेंट डेट्स के ऊपर रिकॉर्डिंग हुई होगी। लेकिन हम अगर मैनेजमेंट ये चाहे कि हमने कितनी सेल्स की है फॉर एग्जांपल एक महीने में, तो हम नहीं बता सकते उसको रिकॉर्डिंग से, क्योंकि उसमें डाटा जो है वो स्कैटर्ड होगा। इसलिए अगर वो ये चाहे कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, तो हम रिकॉर्डिंग को अगर हम देखेंगे तो वहाँ से हम उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते कि हमारे पास खुद कितना कैश अवेलेबल है। तो उसके लिए जो सेकंड स्टेप है वो क्लासिफिकेशन है, यानी हम उन अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, हम लेजर्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। मतलब ये है कि हमने सेल्स का एक सेपरेट अकाउंट जो है वो मेंटेन करते हैं। इसी तरह कैश का जितने भी हम अकाउंट्स यूज करेंगे रिकॉर्डिंग के अंदर, उन सब के सेपरेट अकाउंट्स हम अपने पास मेंटेन करेंगे, और उससे रिगार्डिंग जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी, उनकी डिटेल सारी फिर जो है वो उस उन अकाउंट्स के अंदर आ जाएगी। यानी सेल्स से रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी,
हम उस अकाउंट के अंदर, सेल्स के अकाउंट के अंदर हम उसको लिखते जाएंगे। इसी तरीके से अगर कैश की जितनी ट्रांजेक्शन हुई होंगी, कैश इन हुआ है यानी आप कैश रिसीव हुआ, कैश पे किया, वो सारी की सारी डिटेल जो है वो आपको कैश के लेजर में आपको मिल जाएगी और उसमें बैलेंस शो हो रहा होगा कि इस वक्त हमारे पास कितना बैलेंस है। तो जब भी मैनेजमेंट चाहेगी हम उसको बता सकेंगे कि हमारे पास इस वक्त कितना कैश अवेलेबल है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन जो है वो उस रिकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा बल्क ट्रांजेक्शन थी, उसको जो है वो आप एक क्या लोग समराइज कर देते हैं और आपके पास जो है वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है। तो उसमें क्लासिफिकेशन में हम तमाम अकाउंट्स जो भी हमने यूज़ किए थे रिकॉर्डिंग के अंदर, हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं, यानी उसके हम लेजर्स बना देते हैं और उस हर लेजर यानी हर अकाउंट की एक डिटेल जो है वो, जो भी फाइनेंशियल डिटेल्स होगी वो उसके अंदर आपको शो हो रही होगी और आपको हर वक्त बैलेंस शो हो रहा होगा, जिससे हम ये बता सकते हैं कि मैनेजमेंट ये चाहती है कि हमने कितनी अमाउंट जो है वो अभी रिसीव करनी है, तो हम वहाँ से अकाउंट रिसीवर्स के अकाउंट को देख के बता सकते हैं कि हमने कितने जो है वो अभी पैसे रिसीव करने हैं और हमने कितने पैसे देने हैं। तो अकाउंट्स पेबल के अकाउंट से हम बता सकते हैं हमने इसको कितने पैसे देने हैं। ये सेकंड स्टेप था, यह है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। लेकिन अभी भी जो मैनेजमेंट है उसको और भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए। यानी एक बिजनेस जब हम स्टैब्लिश करते हैं तो उसका एक पर्पज होता है, वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि वो प्रॉफिट अर्न करे और वो ग्रो करे। लेकिन क्लासिफिकेशन से सिर्फ हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती कि बिजनेस ने इस अरसे में कितना प्रॉफिट अर्न किया है। उसके लिए हमें समराइज करना पड़ता है उन अकाउंट्स को। तो समराइजेशन जो है बेसिकली उसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट है, जैसे बैलेंस शीट है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है या स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी है। डिफरेंट जो है वो स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इनकम स्टेटमेंट की, तो इनकम स्टेटमेंट में हम इनकम स्टेटमेंट से रिगार्डिंग जितने भी अकाउंट्स हैं उसको हम इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं, जैसे उसमें रेवेन्यूज है या जैसे एक्सपेंसेस है। तो हम इतने सारे अकाउंट, जैसे क्लासिफिकेशन में रिकॉर्डिंग में तो बहुत सारे अकाउंट्स थे, बहुत सारे, उसके बाद हमने उसको क्लासीफाई किया तो वो कुछ कम हो गए। अब उसके बाद जब हमने समराइज किया, जब समराइज करेंगे तो वो एक दो पेजेस के ऊपर आ जाएगी। जैसे इनकम स्टेटमेंट है तो मैक्सिमम एक या दो पेजेस के ऊपर आपके पास सारी उस बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास अवेलेबल हो। यानी हमने कितने रेवेन्यूज जो है वो इस पूरे अरसे में हमने अर्न किए हैं और कितने हमारे उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस हुए हैं और हमने कितना प्रॉफिट या अर्न किया या हमें कितना लॉस जो है वो इनकर हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हम उसको समराइजेशन की फॉर्म में मैनेजमेंट को दे सकते हैं। इसी तरह बैलेंस शीट होती है, यानी कि जिसमें हम ये बताते हैं कि कितने एसेट्स जो हैं वो इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं, उसकी क्या अमाउंट है। इसी तरह कितनी लाइबिलिटीज़ जो हैं हमने अभी पे करनी है और उसमें हमारे पास इक्विटी यानी ऑनर्स की कितनी इन्वेस्टमेंट जो है, इक्विटी जो है वो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। तो इससे का बेनिफिट ये है कि एक पेज, टू पेजेस के ऊपर हम सारी जो बिजनेस है उसकी सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं मैनेजमेंट को और मैनेजमेंट उसको सामने रख के फिर आगे डिसीजन मेकिंग कर सकती है। जो फोर्थ स्टेप है बेसिकली वो यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही है कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करके फिर जो अकाउंटेंट्स हैं वो उसको एनालाइज करते हैं फर्दर और उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मेथड का जिक्र कर देता हूँ अभी, क्योंकि अभी आपको तो इतना इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल रेशियोज है, तो वो फाइनेंशियल रेशियोज उसकी डिटर्मिन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं उस बिजनेस को और फिर उसकी आगे फर्दर इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इसका क्या मतलब है और इस इंफॉर्मेशन को फिर वो पास करते हैं टुवर्ड्स दी इंटरेस्टेड यूजर्स। जैसे हमने कहा कि जो अकाउंट्स मेंटेन करने का अगर देखा जाए जो मेन पर्पस है, दी दैट इज टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। यानी कि आपने जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करना है टुवर्ड्स द इंटरेस्टेड यूजर, जिसमें मैंने आपको दो एग्जांपल्स अभी दिए हैं कि जिसमें मैनेजमेंट है, जिसमें ऑनर्स है यानी मालिक है बिजनेस का, जिसने वो बिजनेस स्टैब्लिश किया, तो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। फर्दर आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि जो इंटरेस्टेड यूजर्स हैं उनकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस जो है ये फिर कंटिन्यू रहता है, यानी रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो फिर उसके बाद आप रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर आप क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर आप
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा टिल के वो बिजनेस जो है वो उसको वो क्लोज ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है आपको अकाउंटिंग प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आ गया है कि हमने आइडेंटिफाई करना है इकोनॉमिक इवेंट, हमने ये देखना है कि ये इकोनॉमिक इवेंट है या नहीं। तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक इवेंट, इज इट ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉट। फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन, यानी आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना है कि ये इकोनॉमिक इवेंट है या नहीं। अगर इकोनॉमिक इवेंट है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने रिकॉर्डिंग करनी है। तो रिकॉर्डिंग में हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है वो आपने उसको रिकॉर्ड करना है, फिर आप उसको क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर आप उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे और फिर आप कम्युनिकेट करेंगे। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आपने अगर देखा हो तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती हैं और फिर उसको पब्लिक किया जाता है। जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं तो वहाँ पे जो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हम प्रिपेयर करते हैं और फिर उसको या ऑडिट भी करवाते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को और फिर उसको हम पब्लिश करते हैं ताकि जो इसके यूजर्स हैं वो उसको स्टडी कर सकें। और इसी तरह एनालाइज एंड इंटरप्रेट फॉर यूजर्स, यानी आपने देखा होगा कि जो है वो उसको फिर आप अकाउंटेंट्स जो है उसको एनालाइज करते हैं और उसको फिर इंटरप्रेट करते हैं, यानी फिर लोगों को समझाते भी हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट है उसको बताएगा कि ये जो मैंने एनालिसिस किया है इसका क्या मतलब है, ताकि वो उसको आसानी से समझ सकें और उसको सामने रख के फिर वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। जो अकाउंटिंग प्रोसेस है इट इंक्लूड्स द बुक कीपिंग फंक्शन। बुक कीपिंग जो होती है जैसे कि ये रिकॉर्डिंग प्रोसेस है, ये सारा बुक कीपिंग है। तो जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ये सारा जो प्रोसेस है ये अकाउंटिंग का, इसमें जो बुक कीपिंग है वो इसका एक पार्ट है। I think it is enough for today. Inshallah, we will discuss it in detail in the interactive session.